understanding that it is right in the block hole, no chance of lifting the ball up and over the inner ring, giving the respect to that ball from the bowler Amol, and taking a single, going at the non-striker's end. And Rupesh Gaonkar, who has played one a very good innings at the start. There was a partnership of almost 84 runs from both these players. This is the highest partnership as for the opening slot in this tournament, Goa Premier League. And both these batsmen are now on their way to play the third innings. Amol Dubey is going to continue from over the wicket. Very nice bowling. Chance of a run out. Direct hit. Oh, very good cover up here from Akshay, I guess. And Kedar Zamaulikar quick onto that ball, flashing. And direct hit, I think that's the right decision. He should go for the wickets. More wickets quickly here. More chances for Star Risers to make a comeback in this tournament. They have to win this match. If they don't win this match, they will certainly be out of the tournament, as Miran Royals have already won 2. KKG, KKR have won 2. This is in the air. Oh, nothing short. Just a check shot here. Good that he didn't go with the full face of the bat, full flow of the bat. Just checked it at the last moment towards the backward of point region for a single. So far, the scoreboard has been going with only singles. 3 on the scoreboard so far. 3 without the loss of any wicket. Very good start here from Amol Dubey, bowling from over the wicket. Once again, continuing to Rupesh. Hit nicely, hip up and over the long off region fielder, and gets a boundary. Is very strong over that region, and once again showing once the ball is in the slot, he's definitely going to back his instincts to get a boundary. You can once again see the replay there. He likes to play in the V area, that is his strong zone. Once again, this time, that was quicker. That was a fast ball. By the time the batter came down, the ball has hit the wickets. So clean bowled, good comeback by Amol Dubey, striking in the very first over, Star Risers. दुसरा बॅट्समॅन असा त्या कामाचा रिक्वेस्ट जातीतल्या बेगीन येवचो ग्राउंडार बॅट्समॅन. So Raju Dabolkar is the new man that is on the screen. Hi, I'm Rajin Dabolkar. I'm right-hand batsman and right-arm bowler. My favorite tennis player is Pandya Rose. गोयचो टेनिसाचो IPL गोवा प्रीमियर लीग म्हणपाचें कमी ना, कारण एवरीथिंग जे सगळें IPLाक चलता ताजी हुबेहूब म्हणटा ते फिलींग हांगा ह्या ग्राउंडार आल्लेम ग्राउंडार दिल्ले आसा आमकां समर्थेट क्लबान. जाची वंडरफूल युनिट आसात. मिस्टर तोहीद शेख, मुजाहिद बाब शेख वायस प्रेसिडेंट, समीर बाब तोणसे, दीपक बाब नायक, गंधार कुंडेकर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकबाल तोणसे. Once again, very good end to this over from the bowler Amol Dubey. Just a boundary against his name by Rupesh that went down the ground, but good comeback in the end by taking wicket of Rupesh and dot ball to bowl the last ball of the over. After completion of 1, the score is 7-1. And one more thing, anga payla ki Miran Royals
टिमीचे नाव सध्या अजून पर्यंत 2 मॅची खेळ्या, 2 मॅची जिखल्या आणि सगळ्यात यंगेस्ट ओनर जर म्हणपाक जाता आमी जाल्यार तो बाब मिरान जो 17 म्हयन्याचो आसा तो हांगा आयला आपल्या टिमीक सपोर्ट करपाक. म्हाका दिसता मुजाहीद ओनर ऑन पेपर बट ऑन रिकॉर्ड भितर घरा भितर सुद्दां म्हाका दिसता जर ओनर कोण आसतलो जाल्यार तो मिरान. आणि माणकुलोचो भुरगो आणि ताजें नाव सध्या ह्या टुर्नामेंटाक गाजता. मिरान रॉयल्स आर डुईंग फॅन्टास्टीक हियर. मे बी इन फ्युचर वी कॅन सी हिम एज द फ्युचर ओनर और मे बी अ क्रिकेटर प्लेइंग फॉर मिरान रॉयल्स. Myself, Kapil Velis, right arm fast bowler, tennis icon player Vikas Desai. So Kapil Velip and his favorite player Vikas Desai, who is definitely a wonderful player, very elegant and talented player. So Munna Sheikh. Oh, what a ball, a wonderful ball here from Kapil Velip. Squared him up totally, and if you can square a batsman who is in top form in this tournament, that's a very good start here for Kapil Velip. 88 runs in total in this tournament so far for the batsman. Very nicely played, very watchfully played. Oh, he could not collect that ball. There was an opportunity of the second, but he ran down too much over there at the non-strikers and Munna Sheikh, so only a single will be taken by Miran Royals team. Score moves on to 8 with that single. 8 second over in progress. Star Risers have to do something like how Gopal Gauss has done. They need to take wickets of Miran Royals quickly. They have got very deep batting lineup. Raju Dabholkar has been sent. He has already taken a hat-trick in this tournament. Man in form, getting a Man of the Series award in a tournament that was just concluded yesterday. And now once again, when you take a hat-trick also, that job is very well done by this man. Confidence booster here for him. Short ball, what a shot. Spanking shot, it was just like a slap on to the bowler, saying, don't bowl that short ball to me outside off stump. I'm a very good hitter in the offside as well. This. Nizami Paradise and KKG Knight Riders. The captains, please kindly be ready for the toss and alcohol test. Both the team captains and the team, please come for the alcohol test, and the captains also be ready for the toss. KKG Knight Riders and Nizami Paradise, both the teams. So the call goes to Nizami Paradise and KKG Knight Riders. Begin यात आणि alcohol test करात कारण delay करपाचो ना. Was that an outside edge? I guess looking at the reaction of Usman Patel from behind the wicket, looks to be an outside edge. A very good ball here. Not bowling the leg spinner, bowling the quicker one, fast. Difficult for the keeper as well to take that catch. You need fast reflexes. That's a good comeback. That's a very good comeback here from Kapil. That previous ball that went for a boundary was a short, wide, ample of time, ample of space for the batsman to rock back onto the back foot, play it over the covers region for 4 runs. 2 dot balls in a row after that. 12 only on the board so far. Second over in progress, 1 ball left in this over. This is in the air. Will it be taken? But we have to wait. Stopped him. Stop that ball. Will be going for only 2 runs. I thought first he was going for the catch, but he was falling way short of Akshay Jogre. He certainly saves that ball, but 2 runs cannot be saved after completion of 2 overs. The score is 14 for the loss of 1. If you have carefully looked at both the innings of Munna Sheikh,
in both the innings that he batted, he saw the ball carefully, what the bowlers are doing, and once he was very sure about the bowling, then he went after the bowling. He first takes every innings as a different innings. That's exactly the right way. In spite of being in form, he is not allowing to face his form, getting the ball feel of the bat, and once you feel that ball right of the meat of the bat, then he goes for bowlers. Can we see one more onslaught here from Munna Sheikh, just like in the previous two matches? Bhushan Gori. So outstation player or overseas player you can call. Usman Patel is patrolling his troop, getting them in the right areas, right positions. Both are openers in Umar 11 team. Munna and Usman Patel. So both know each other very well. Strength and weaknesses. This is in the air. Will it be taken or it's going for 6 runs? Catch taken nicely in the deep and the plan has worked. Bhushan Goli was being taken into the attack to get rid of Munna Sheikh. He went for the big shot, didn't get the timing right, and a catch taken cleanly by Imran Mullah in the deep. Just before 2 seconds ago, he placed that fielder in that region, Usman Patel, and Munna Sheikh gives the catch straight in the hands. Maybe that was a plan to bowl a lower full toss, or maybe that was not a plan, but certainly I can say the ploy has worked. So new batsman coming onto the wicket is Vishwajit Thakur. Nizami Paradise, तुमचे players तशेंच KKG Knight Riders तुमचे players तुमका request जाता तितले बेगीन Alcott test करपाक येयात. So the tournament has been going very well, especially with the ball here for Vishwajit Thakur. Vishwajit means world conqueror, and definitely showcase his talent with the ball to conquer in that department. Can he do that as an all-rounder here with the bat? Slight in a trouble, you can say, at this moment with a 16 on the board, third over in progress, 2 wickets. This is going for a switch hit. What a shot! What a shot that was. Just take that for a bowler who was bowling outstanding, getting a wicket of the man in form, Munna Sheikh, and he goes for the switch hit of the very first ball. This is outstanding here from none other than Vishwajit Thakur. This is super shot. It's not easy to play this shot in the lights. Oh, that was an outside edge, but falling short of the keeper, Usman Patel. Ball going down towards the third man region. A misfield from the field at the short third man region. Amol Dubey that was. So 2 runs taken, that takes the score to 22. 22 on the board with third over in progress. 8 runs coming off this over so far. Wonderful breeze flowing across the ground. Right from the start it was, even when it was hot sun. Going for the switch it once again. This was a quicker ball. You can see that bat speed when it comes for the switch. It comes much quicker here. That's the reason why he gets those 6s, the power behind that shot. And many a times you practice that in the nets, practice that in many of the matches. It comes right in a big tournament like this. Big player. Goes for it once again. Was it a catch? There was an excitement there from the bowler, but I think that was an excitement. Nothing from behind the wicket. Very good comeback, you can say, after being hit for a 6 and 2 runs. 2 dot balls in a row against the man in form, Vishwajit Thakur. So far the scoreboard is at 22. Miran Royals, the match is turning out to be an interesting one.
Very nicely played down the ground. Good running between the wickets here by the batsman Raju Dabolkar, coming quickly to take that single. And that single, will it be to end over number 3? Score is 23 for the loss of 2 wickets. And a good comeback here by Bhushan Gore. परत एकदा अनाउन्समेंट दिता कारण खूबशे स्पेक्टेटर्स आसा ते एक्साइटमेंटान जे एडवर्टायझिंग बोर्ड लायिल्ले आसा ताजे मुखार येनाकात एडवर्टायझिंग बोर्ड लायल्या ताजे फाटल्यान रावन तुमी मॅच डेफिनेटली पळयात. आनी वायरूय हांगा आसा, कंटिन्युअस वायर आसा, जितले काही जनरेटर आसा, प्लस साऊंड सिस्टम आसा, स्क्रीन लायिल्ली आसा. थंय मातशे तुमी पाय सांबाळून, कारण मागीर आ केले म्हणून कांय फायदो ना, कारण स्पेक्टेटर्साक इन्शुरन्स आसना, फक्त प्लेयर्साक आसता. आनी प्लेयर्साकय आमी रिक्वेस्ट करतले की मातशे पाय सांबाळून तुमी वचात. एंड आनी माणकुले भुरगे आसात, पेरंट्स जे आयल्यात हांगा, तांकां रिक्वेस्ट करता, तुमचे माणकुले भुरगे हांगा थंय भोंवतात, तांकां पांय मातशे सांबाळात, तांकां तुमी मातशे तांचे बरोबर रावात, ना जाल्यार तांकां कळपाना खंय वायर आसा, कितें आसा. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर चिल्ड्रन. आयल हँड ओवर द मायक टू Prasad Parab for further commentary in his wonderful voice in Marathi. थँक यू सो मच हरीश काकोडकर. जबरदस्त तडाखा, पहिल्याच चेंडूवर स्वागत केलंय षटकाराने आणि अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. तो सूर्या गावकरच्या विरुद्ध ठोकलाय तो विश्वजित ठाकूरने. गुड शॉट. धावसंख्या 29 धावफलकावर आपण बघतोय. षटक क्रमांक 4 सुरू आहे आणि मागच्या 3 षटकात आपण बघतोय फक्त 23 धावा अंकित झाल्या होत्या. मुन्ना शेख बाद झाल्यानंतर आपण बघतोय की जबाबदारी स्वीकारली आहे ती विश्वजितने. उंच गेलाय लीडिंग एज घेऊन, बघायचंय गोलंदाज चेंडूच्या खाली एकदम इझिली चेंडूच्या खाली येतोय. अँड बॉल अँड कॉट, फलंदाज बाद. This is a priceless wicket. New batsman Chandan Naik. तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवर चंदन नाईकला. 5व्या क्रमांकावर बॅटिंगला येतो मैदानाच्या आतमध्ये चंदन नाईक. एक आघाडीचा आणि ताकदीचा फलंदाज आहे. गोव्यालाच बिलॉंग करतो. अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळाडू. विस्फोटक अंदाजमध्ये त्याची नेहमीच आपण बॅटिंग बघितली आहे. न्यू बॅट्समन you can see on the screen Chandan Urfa Bhamdas Naik. Hi, I'm Chandan Naik. I'm right-handed batsman and my favorite player is Punani Kalangutkar. क्या बात आहे. पुनाजी कलंगुटकर त्याचा फेवरेट बॅट्समन आहे. तो तुम्हाला स्ट्रायकिंगला पाहायला मिळते. चंदन नाईक 5व्या क्रमांकावर. आपण पुनाजीला उद्या बघू शकाल या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना उद्याच्या लीग मध्ये. गोलंदाज सज्ज आहे षटकामध्ये सूर्या गावकर. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट स्लाइस केले. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाहीये. 2 खेळाडूंच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शर्यत लागली चेंडूने खेळाडूंमध्ये आणि शर्यत फायनली जिंकली आहे खेळाडूने. कपिला तिथे आणि तोपर्यंत 2 धावा इथे सहज पूर्ण होत आहेत. या सामन्यात जे हवं होतं ना ती एसटीच्या मागून आपण बघतोय. आपण बघतोय फलंदाज उस्मान पटेलला जे हवं होतं ते मात्र मिळतंय. कारण विकेट हवे होते ते विकेट्स मिळाल्या. कारण या संघाने आतापर्यंत एकही सामना जिंकलेला नाहीये. त्याच्या आपण बघतोय आपण म्हणजेच स्टार रायझर्स विजयाच्या शोधात आहेत. पहिल्या विजयाच्या. स्लोरवन चेंडू गती परिवर्तन. काय पिकअप शॉट आहे. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. दे धमाका षटकार. इट्स अ मॅक्सिमम. टिपिकल शॉट फ्रॉम चंदन आणि चंदनने शॉट ठोकलाय त्या मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार.
चंदन नाईक एकमेव असा दुवा एकमेव असा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जो मात्र चांगली बॅटिंग करू शकतो. राजू दाभोळकर मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आलाय. त्याच्या बॅटमॅन आतापर्यंत आपण बघतोय 4 चेंडू सामोरे तो गेलाय, 6 धावा अंकित केलाय. राजू दाभोळकरला आतापर्यंत मी गोव्यामध्ये ॲज अ अंपायर म्हणून याच रोलमध्ये बघितलंय. हां, इव्हन त्यांची जेव्हा सांगेम प्रीमियर लीगच्या एखादी मॅच जर संपली तर अभितळेकर आणि राजू दाभोळकर दोघांमध्ये एखादं द्वंद्व आपल्याला बघायला मिळालं मैदानावर. म्हणजे एखादा षटक, गोलंदाजी असो, फलंदाजी असतो, दोघांमध्ये चर्चा सुरू असायची. पण आज मात्र आपल्याला बॅटिंग सुद्धा बघायला मिळाली राजू दाभोळकरची, गोलंदाजी बघायला मिळाली, विकेट हॅट्रिक घेतली. पहिल्या विकेट हॅट्रिकची नोंद राजू दाभोळकरने केली आणि तो किती जबरदस्त पोटेन्शियलचा खेळाडू आहे हे सुद्धा पाहायला मिळालं. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये सेफ शॉर्ट कव्हरला एक्झिक्यूट केलाय चंदनने. हा चेंडू धावसंख्येला आकार दिला धावफलक आपण बघतोय. माझ्यासोबत अखिल परब मला सांगतात एकूण धावसंख्या अंकित झाली 39 धावा धावफलकावर, 39 ऑन स्कोर कार्ड, 4 ओव्हर इन प्रोग्रेस. अमोल दुबे एक षटक, कपिल एक षटक, भूषण एक षटक आणि सूर्या याचं चौथं षटक आपण बघतोय. पूल करायचा प्रयत्न होता, चांगला चेंडू आता आलाय राजू दाभोळकरच्या समोर आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय चौथं षटक इथे समाप्त होते. धावसंख्या 39 आणि आपण बघतोय 9.75 ची गती राखली आहे 3 गड्यांच्या मोबाईलमध्ये 39 धावा धावफलकावर. नवीन गोलंदाज अमोल दुबे सेकंड स्पेलमध्ये गोलंदाजीसाठी येतोय. पहिल्या स्पेलमध्ये एक षटक हाताला 7 धावा खर्च केला, 1 विकेट त्याने मिळवली. मॅग्निफिसंट शॉट फ्रॉम चंदन नाईक, सीमारेषेवर दे धनाधन षटकार. डोळ्यांचं पारणं फेडणारा लॉंग ऑफला हा षटकार, जिथे मात्र मला असं वाटतं बाउंड्री लांब आहे थोडी आणि तिथे मात्र आपल्या ताकदीच्या जोरावर काय एक्झिक्यूट केलंय चंदन नाईकने. वेगवान चेंडू, स्वीप करायचा प्रयत्न, चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय डीप मध्ये, फाईन लेगला खेळाडू नाहीये, चेंडू वेगाने निघून गेलाय. बघायचा पंचांचा इशारा, लेग बाईचा आणि हा चौकार. सुजित राणे, अभिजित तळेकर तुम्ही आता पंचांच्या भूमिकेत त्या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये काम पाहत आहेत. करुणाकर कोटी आणि त्याचबरोबर कल्याणी घोरपडे हे सुद्धा तुम्हाला पंच या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतात पंचांच्या भूमिकेमध्ये. या 4 पंचांच्या खांद्यावरी पूर्णपणे जबाबदारी तुम्हाला पाहायला मिळते. खूप सुंदर चौकार ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळाला. पायाला लागून चेंडू निश्चितच ब्रश होऊन निघून गेला. विकेट किपरला बीट करून उस्मान पटेलला. धावसंख्या धावफलकावर आपण बघतोय चौकारच्या मध्ये अंकित झाली ती 49, 49 धावा. थँक्यू शेजाद शेख जे आमचे ऑफिशियल क्रिक हिरोजचे स्कोरर आहेत औरंगाबादचे. ओ चांगला फटका आहे, गॅप मध्ये एक्झिक्यूट केलाय, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर 2 बाउन्स वर रोप, सीमारेषेच्या बाहेर दणदणीत चौकार. 50 अप 50 धाव सुद्धा पूर्ण होते धावफलकावर. स्टार रायझर्सच्या आगेस आपण बघतोय मेहरान रॉयल्स या संघाच्या माध्यमातून चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. मुन्ना शेख तंबूत परतला, विश्वजित ठाकूर तंबूत परतला, पण चंदन नाईकने सांगितलंय मै हूं ना.
2 षटकार 1 चौकार घणाघाती फलंदाजी आणि राजू दाभोळकर त्याची खूप चांगली साथ देतो मैदानावर. राजू दाभोळकरने आल्या आल्याच ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू जो भेटला त्या चेंडूला जबरदस्त एक्झिक्यूट केलं कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये. स्वीपर कव्हरला चौकार वसूल करून खातं उघडलं. स्ट्राईक केला पुन्हा त्या चंदन. चेंडू हवेमध्ये मिड विकेटला. व्हाट अ शॉट इज दॅट. हाव देखा ना ताव और बता दिया ते दल का भाव. 6 रन. व्हाट अ शॉट. परफेक्ट बाहुबली शॉट. 6 चेंडू तब्बल वैयक्तिक 25 धावा. क्वार्टर सेंचुरी स्वतःची कंप्लीट केली आहे दाजी नाईकने खूप कमी वेळेमध्ये. जेव्हा संघ अडचणीत होता संघ अडचणीत संघाला बाहेर काढलाय आणि एक पात्री अभिनय काय असो 100ली काय असं बॅटिंग करणं ते दाखवून दिले इथे मात्र चंदन नाईकने. व्हॉट बॅटिंग. मागच्या सामन्यात सुद्धा आपण बघितलं की 25 धावेचं योगदान दिलं होतं चंदनने. स्लोअर वन चेंडू गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं. हलकासा आउटस्विंग टाकला. जेव्हा जेव्हा वेगवान चेंडू समोर आले जेव्हा जेव्हा वेगाने मात्र बीट करण्याचा प्रयत्न केला चंदन नाईकला त्याच्यावर त्याच्याकडे फटके तयार होते. त्याच्या पोटेन्शियलमध्ये त्याच्या गुणवत्तेत त्याच्या भात्यातले फटके आपण बघितले आणि मोठे मोठे फटके इथे मात्र अमोल दुबेच्या अगेन्स्ट त्याने एक्झिक्यूट केले. लॉंग ऑफ लेग षटकार सुद्धा बघितलं आपण पहिल्याच चेंडूवर या षटकामध्ये. वेगवान चेंडू पण थोडासा फटका मिस होतोय. विकेट किपर चेंडूवर येतोय. चेंडू कव्हर करतो पर्यंत क्विक सिंगल लेग बायचा सिग्नल सुजित राणे ते करतायत आणि धावसंख्येत होईल ती भर. एकूण धावसंख्या अंकी झाली धावफलकावर ती एकूण 60 धावा धावफलकावर. 60 ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 5 ओव्हर. 12.00 ची गती. स्ट्राईक रोटेट केले स्वतःकडेच दाजी नाईकने चंदन नाईकने आणि बघायचं आहे आता मात्र शेवट षटकामध्ये कुठला गोलंदाज समोर तो आता 2 हात करणार. गोवा प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही पाहतात. समरसेट स्पोर्ट्स क्लब प्रेझेंट गोवा प्रीमियर लीग आणि परफेक्ट प्रीमियर लीग टुर्नामेंट असं म्हणायला लागेल कारण आपण बघतोय की गोवा राज्यातले खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत आणि त्यांच्यासोबत निश्चितच मुंबई महाराष्ट्र पूर्ण भारतातील आयकॉन खेळाडू या स्पर्धेत तुम्हाला पाहायला मिळतात. आयकॉन खेळाडूचा भरणा सुद्धा या संघात तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि त्याच्यामुळे काय होते की लोकल क्रिकेट आणि बाहेरचं क्रिकेटमधले जे एक्सपिरियन्स आहेत ना. यस नेक्स्ट बॉलर. Hi, I'm Akshay Jogle. I'm right-arm fast bowler. My favorite player is Akash. गौरीश नागवेकर आज या संघामध्ये खेळत नाहीये. शॉर्ट ऑफ लेंथ चांगला चेंडू. सुपर्ब डिलिव्हरी. दाजी इथे मात्र चंदन सारख्या खेळाडू जातात स्टार्टिंगला पहिल्या चेंडूवर अक्षरशः जखडून ठेवले बांधून ठेवले पहिल्या चेंडूवर. गुड बॉलिंग फ्रॉम अक्षय जोगळे. आपण बघतो की लोकल खेळाडू जे आहेत गोवा राज्यातले जे खेळाडू आहेत त्या सर्वांचे आपल्याला क्लिप्स आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत म्हणजे व्हिडिओज पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच होता खूप लवकर पिकअप केला आणि काय एक्झिक्यूट केलाय. चेंडू सीमारेषे बाहेर. 6 धावा. दे दनादन चंदन. 4 षटकार ठोकलेत. क्रिकेट विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्रिकेट मधला जो वर्ड आहे ना क्रिकेटचा दुसरा जो शब्द दुसरा जो अक्षर आहे ना आर विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ती बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते चंदन नाईकची. वॉट अ नॉक. 11 चेंडू आणि तब्बल 31 धावा. एक पात्री अभिनय आपल्या संघासाठी इथे चंदन नाईकचा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज कोणी असो मी फक्त करणार आक्रमण. हा चेंडू उंच गेला. मिस टाइम झालाय. क्षेत्ररक्षक जिथे जज करतोय लॉंग ऑफ वरून येतोय चेंडूच्या खाली पण लॉंग ऑनच्या खेळाडूने सांगितले मी घेऊ शकतो आणि त्याच्याकडनं चूक. सूर्या गावकर कडून चूक झाली आहे. झेल त्याने सोडलाय. शेवटचा कॉल आहे दोन्ही संघांसाठी. बघायचं आहे पुन्हा त्या झेल उडालाय. क्षेत्ररक्षक जज करतोय वाडिश लॉंगॉनला आणि बरोबर आता पुन्हा चूक. पुन्हा एकदा चूक होते आणि हा चेंडू सुटला तर बघायचं किती धावा मिळणार या चेंडूवर. पंच कन्फर्म करतायत आणि हा षटकार. झेल तर सोडला आणि 6 धावा खर्च केल्या त्या खेळाडूने म्हणजे सूर्याने. सूर्या गावकर. झेल सोडल्यानंतर आम्ही कार्यसम्राट चषक रत्नागिरी रांजणी स्पर्धा सुरू आहे. झेल सोडल्यानंतर अमोल भोसलेने 39 धावा कुठल्या. 3 झेल सुटले. 5 षटकार ठोकले. इथे मात्र 1 षटकार ठोकलाय झेल सुटल्यानंतर चंदनने.
हो व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मॅच, मॅग्निफिसंट शॉट. चेंडू सीमारेषेवर भिरकावून दिलाय, षटकार. 14 चेंडू, तब्बल 45 धाव्यांची एक भेदक आक्रमक विध्वंसक खेळी. Parab sir, last call for team KKG Knight Riders and Nizami Paradise. This is the last call for the toss ceremony and alcohol test as well. 79 इज अ स्कोर. इनसाइड एज, जास्त लांब जात नाही चेंडू, स्क्वेअर गेला क्षेत्ररक्षक काय चेंडू कव्हर करेल, एकदा तर कंप्लीट केली आहे आणि त्याचबरोबर धावसंख्या 80 धावा धावफलकावर. आजच्या दिवसातला इंडिव्हिज्युअल टॉप स्कोरर आपण बघतोय चंदन नाईक. धावा कुठल्या तब्बल मैदानावर 46 धावा आणि चेंडू घेतलेत किती मैदानावर आपण बघूया. फक्त 15 चेंडू आणि 46 धावा. वॉट अ बॅटिंग, वॉट अ नॉक. जेव्हा संघ अडचणीत होता आपण बघितलं की आघाडीला मुन्ना शिकाला, मुन्नाच्या बॅटमनना या सामन्यात फक्त धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या नाही. मागच्या दोन्ही सामन्यात आपण बघितलं 43 धावा कुठल्या. त्यानंतर आपण बघितलं की रुपेश गावकर त्याच्यासोबत एक चौकार त्याने ठोकला. राजू आले, राजूच्या बॅटमन आपण एक चौकार बघितला, तो सुद्धा नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा राहिला. आणि विश्वजितने थोडासा एंटरटेन करण्याचा प्रयत्न केला, 2 षटकार त्याने ठोकले, एक डबल एक सिंगल, वैयक्तिक 15 धावांचं योगदान त्याने दिलं. पण चंदन नाईक आला आणि भाव खाऊन गेला, तब्बल 46 धावा ठोकल्या आणि इथे मात्र सामन्याला एक वेगळाच रंग चढवून गेलाय. धावसंख्या एकूण अंकी झाली धावलकर आपण बघतो 80 धावा आणि 81 धावसंख्येचं लक्ष उभारलंय. 81 धावा झाल्यात कंप्लीट आणि 82 धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारलं मैदानावर आपण बघतोय स्टार रायझर्स या संघासमोर. चला मगाशी आपण सूचना दिली होती अल्कोहोल टेस्टसाठी दोन्ही संघनायकांनी ताबडतोब रिपोर्ट करायचं पूर्ण संघाला घेऊन. केकेजी नाइट राइडर्स आणि निजामी पैराडाइज दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध करता हूं कि तुरंत आपको आना है अल्कोहोल टेस्ट के लिए और रेडी रहना है टॉस के लिए भी. थोडीशी विश्रांती घेतो. पहिलं सत्र इथे समाप्त झालंय, 81 धावा अंकित झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा एक हायेस्ट टोटल बघायला मिळते आणि हायेस्ट टोटलचा पाठलाग बघायचा कशा प्रकारे इथे केला जाईल. कारण उस्मान पटेलचा जो संघ आपण बघतोय स्टार रायझर्स आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये किंवा या लीग फॉर्ममध्ये एकही सामना त्यांनी जिंकलेला नाहीये. त्यामुळे आता मात्र जिओ मरो मतलब डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे. सामना जिंकावा लागेल आणि उस्मान पटेल चीज काय आहे ते उस्मानला दाखवावी लागेल. रायगडचा टायगर त्याला का म्हटलं जातं ही त्याला फलंदाजी करून दाखवावी लागेल आणि धावसंख्येचा पाठलाग बघायचा ते कशा प्रकारे करतील. थोडीशी विश्रांती घेतो आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इन्व्हाइट करतो ज्यांच्याकडे तब्बल 12 वर्षाचा एक प्रदीर्घ अनुभव आहे. आपण ऐकूया नदीम अहमद यांना कॉमेंट्री बॉक्समधून पुढच्या सत्रामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू प्रसाद परब जी. In the meantime, a quick summary of this match and what a contribution of runs from Chandan Naik, and that's the reason why he's been called as Chandan De Dhanadhan. 15 balls and 46 runs contribution. Not out, unbeaten. 46 was just outstanding. A handful of runs coming from his bat, absolutely brilliant. So now, as rightly said by Prasad Parab, that why Usman Patel has been called as the tiger of Raigad. He has to definitely show Sujit
तो बिल्कुल जिस तरह से प्रसाद परब साहब ने कहा कि रायगढ़ का टाइगर को देखना होगा कि 82 रन तक क्या पहुंच पाएंगे, और एक मस्ट विन मैच है जो कि 36 गेंदों में 82 रन का लक्ष्य के सामने। केदार जांबावलीकर का वीडियो देखिए स्क्रीन पर। Hi, my name is Kedar Zambalikar. I'm left-handed batter. My favorite player is Mr. Nitya Kazi. विश्वजीत ठाकुर तो रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल क्रीज पर और गेंदबाजी क्रम में विश्वजीत आरटीएन की ओर से गेंदबाजी करेंगे और नॉन स्ट्राइकर लाइन पर केदार जांबावलीकर। तो 36 गेंदे 82 रन पहली गेंद। संभल का खेला बिल्कुल पॉइंट की दिशा में 1 रन के साथ। हल्का सा फंबल मलिंगा की ओर से, मगर कोई अतिरिक्त रन का फायदा नहीं मिलेगा। तो 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए उस्मान पटेल, सुंदर बल्लेबाजी की शुरुआत की उम्मीद उनसे बिल्कुल लगाई जा रही है। धीमी गति से शुरुआत, हालांकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी मिलता हुआ। तो विश्वजीत बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी करते हुए, तो देखना होगा कि क्या बाएं हाथ के बल्लेबाज को भी रोक पाएंगे। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग के साथ निश्चित तौर पर 82 का लक्ष्य डिफेंड कर सकते हैं, मगर क्या टाइगर को रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। हल्की सी तब्दीली फील्डिंग में, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर। पटकी हुई गेंद इस बार पुल करने की कोशिश, मगर इशारा देखना होगा अंपायर का। विद द बैट, हल्का सा बल्ले का मिला हुआ, सही पकड़ नहीं बनाई, मगर 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए केदार। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 रन के साथ अपना खाता खोला है, और देखना होगा लंबा सफर उनके सामने मौजूद है। काफी तजुर्बेकार बल्लेबाज उस्मान पटेल अब स्ट्राइक पर। विश्वजीत गेंदबाजी के क्रम में ये गेंद, और गेंद हवा में थी, वहां पर छलांग लगाकर कैच लेने की कोशिश, मगर गेंद गई है 4 रनों के लिए डीप फाइनल की दिशा में। तो इस 4 रन के साथ बिल्कुल नगाड़ा बजता हुआ, बैंड बाजा बारात से आवाज आती हुई, जोरदार सुंदर चौके के साथ हिम्मत अफजाई मिलती हुई उस्मान पटेल को। तो बिल्कुल अब हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश, बिल्कुल लाजवाब, काफी तजुर्बेकार विश्वजीत। गेंद हवा में, और ये विकेट हो सकती है। रायगढ़ का टाइगर आउट। तो इस गेंद के साथ और अमित नाइक ने एक सुंदर कैच के साथ एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। तो उस्मान पटेल आउट। अब बिल्कुल जिम्मेदारी रहेगी दूसरे बल्लेबाजों पर कि किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है और किस प्रकार से 82 के लक्ष्य तक पहुंचा जाना, ये एक निश्चित तौर पर एक चुनौती रहेगी बल्लेबाजों के सामने। तो देखना होगा कि स्टार राइजर्स के कौन से बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं। तो जिस विकेट की तलाश थी मेहरान रॉयल्स को, आखिरकार वो विकेट मिलती हुई। ये देखिए एक आसान सा कैच, पूरी तरह से मिस टाइमिंग कर बैठे उस्मान पटेल, और एक आसान सा कैच दे अमित नाइक को, और अमित नाइक ने कोई गलती नहीं की। जिस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विंस द मैचेस, उसी प्रकार से इस एक कैच के साथ और ज्यादा स्ट्रांग नजर आती हुई मेहरान रॉयल्स। भूषण गोले क्या दागेंगे गोले बल्लेबाजों पर,
ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज की आवश्यकता जो कि क्रीज पर जो कि टिक कर डट कर लंबी बल्लेबाजी करेगा और 82 के लक्ष्य तक पहुंचाएगा टीम स्टार राइजर्स को। तो बिल्कुल गेंद हवा में थी मगर 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए भूषण गोले। तो बिल्कुल मोर्चा खोलना होगा भूषण को, तोप और गोलों के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार और हर एक गेंद पर रन बनाने होंगे, तब जाकर पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक जो कि 82 का। स्वागत है मेरे कमेंट्री बॉक्स में बैंग बैंग अर्कस यानी कि भरत अर्कस, जिन्होंने आज लाजवाब बल्लेबाजी की है और पूरी लय में, जब लय में आते हैं तो प्रलय कर देते हैं, वो है भरत अर्कस। बैंग बैंग दो भाई भरत अर्कस, अमर अर्कस गोवा के सरजमीन पर काफी मशहूर, खासतौर पर लोकल टूर्नामेंट्स में उनका बड़ा नाम। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार आगे को आए हाफ वॉली पर गेंद को लेने की कोशिश मगर भांप लिया था गेंदबाज ने, जिसे कहते हैं स्मार्ट गेंदबाजी विश्वजीत की। पहली ओवर की समाप्ति इस 1 रन के साथ, डॉट गेंद के साथ माफी चाहूंगा, पहली ओवर की समाप्ति 1 रन, 8 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद और 1 विकेट की सफलता जो कि मिलती हुई गेंदबाज विश्वजीत को। सही कहा हरीश काकोडकर ने, विश्वजीत यानी कि विश्व जीतने वाला विश्वजीत। क्या विश्वजीत की टीम इस मैच को जीतेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल दूसरी ओवर के लिए देखना होगा कि कौन से गेंदबाज पर यकीन किया जाएगा कप्तान द्वारा। तो सलिंगा मलिंगा दिखाई देते हुए हल्की सी वार्म अप करते हुए जब इंटरव्यू ली जाती है तो बिल्कुल कमाल के इंटरव्यू देते हैं। एक उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, एक कमेंटेटर ने उनसे पूछा था कि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो कि कितना लक्ष्य रखेंगे, और सलिंगा मलिंगा ने कहा था जितना बल्लेबाज मारेंगे उतना लक्ष्य। तो बिल्कुल हजारों की संख्या में वो वीडियो को देखा गया था और काफी तारीफ की गई थी, और आज भी बिल्कुल उसी पटाखे अंदाज में हर एक इंटरव्यू का जो है जवाब देते हैं सलिंगा मलिंगा। तो फिलहाल महेश साकलकर को लाया गया है गेंदबाजी में। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, महेश साकलकर, राइटी बॉलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मतलब फेवरेट प्लेयर सूरम पार्सेकर। बिल्कुल सलिंगा मलिंगा की बात की है और सलिंगा मलिंगा बड़े स्क्रीन पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए दूसरा ओवर लेकर महेश साकलकर, जिन्हें सलिंगा मलिंगा के नाम से जाना जाता है। पहली गेंद बैकफुट पर, बिल्कुल सुंदर शॉट, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मगर दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद गई है दर्शकों में और दर्शक फील्डर की भूमिका में कैच को पकड़ते हुए 6 रन मिलेंगे केदार को। तो मिक्सचर बिल्कुल बढ़िया धीमी गति से गेंद डाली गई थी जो कि हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर। बिल्कुल काफी अनुभवी सलिंगा मलिंगा, और एक शेर सुनिएगा खासतौर पर अभिषेक शानो, आप सुनिएगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार गेंद हवा में, कॉस की दिशा में केवल 1 ही रन मिलेगा। अनुभव पर यह शेर है कि अनुभव की भट्टी में तप कर जो निकलते हैं, अनुभव की भट्टी में तप कर जो निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। और सलिंगा मलिंगा बिल्कुल काफी अनुभवी और काफी प्रेशर मैचेस में उन्होंने मैचेस जिताए हैं। तो बिल्कुल एक अपना अनुभव जो कि अपने गेंदबाजी में दिखाते हुए काफी सुंदर गेंदबाजी। हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था केदार ने, मगर बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाज केदार को। इस प्रकार से बिल्कुल एक अंकुश लगाने का प्रयास बखूबी होता हुआ सलिंगा मलिंगा की ओर से बाहरी किनारा का गेंद शॉर्ट थर्मिंग की दिशा में, वहां पर फंबल के साथ गेंद जाएगी 4 रनों के लिए।
बिल्कुल ये निराशाजनक सलिंगा मलिंगा के लिए। क्या कर सकते हैं गेंदबाज, अपने हाथों को रखा कमर पर और नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि रोका जा सकता था। अगर फील्डिंग होती तो केवल एक ही रन मिलता था बल्लेबाज को, मगर मिस फील्डिंग के साथ 3 रन का तोहफा दिया बल्लेबाजों को। इस चौके के साथ स्कोर। मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएं। मुश्ताक, इंडियन कैपिटल्स के ओनर मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएं। आपको यहां पर याद किया जा रहा है मुश्ताक अहमद साहब। तो आखिरकार विकेट की सफलता मिलती हुई फिर से एक बार भूषण गोले, जिनसे अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि लंबे लंबे छोड़ेंगे गोले और तोप का इस्तेमाल होगा, मगर वो भी लौटे हैं पवेलियन में। तो एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश जो कि जाकर बिल्कुल लंबी पारी खेले और जबरदस्त शॉट के साथ। तो मैदान पर उतरते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयद बदी, स्क्रीन पर आप देखिए। Hi, I'm Syed Badi, right-hand batsman, and my idol is Syed Abdul Aziz. मुश्ताक अहमद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाएं। तो बिल्कुल सैयद बदी ने कहा कि उनके आइडल हैं सैयद अजीम, जो कि उनके पिताजी बिल्कुल एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। संभलकर बिल्कुल ऑन द फ्रंट खेल दिया है। अब कप्तानी भरी पारी खेलनी होगी सैयद बदी को, और उनमें दमखम है, जोश है, जज्बा है। एक बड़ा खिलाड़ी जो मुमकिन कर सकता है। तो 2 ओवर की समाप्ति, एक सुंदर ओवर घटाया सलिंगा मलिंगा ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे बचाओ। तो फिलहाल म्यूजिक पर अंकुश लगाया गया है, क्योंकि जी हाँ 9:30 बज चुके हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 यानी कि लगभग 10 रन प्रति ओवर बना रही है टीम 2 विकेट खोने के बाद, मगर लक्ष्य अभी भी काफी लंबा, जो कि 82। तो निश्चित तौर पर अब गियर बदलकर बल्लेबाजी करनी होगी। हेलो, दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ा सा थामो तो नदीम, अगले टॉस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट ओनर मुश्ताक अहमद साहब, उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केके नाइट राइडर्स के गोपाल गवस और उनके साथ निजामी पैराडाइज के अंकित देसाई। ऑल द बेस्ट। All the best for the both captains. Tail is the call, and I think head it is. Aniket Desai the toss. रणजी प्लेयरची भूमिका जी तुम्ही बजाव ने जो रणजी प्लेयर की भूमिका में गोवा का नेतृत्व किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज टेनिस बॉल क्रिकेट के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बाकी सभी खिलाड़ियों को, खास करके आइकॉन खिलाड़ी टीम में खेल रहे। तो गोवा प्रीमियर लीग के माध्यम से सभी प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये आपको कैसे लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, और यंग टैलेंट को, गोवा के यंग टैलेंट अच्छा मौका मिल रहा है बड़े बड़े प्लेयर लोगों के साथ खेलने का, और आगे के लिए मीन्स आगे के मैचेस के लिए उनको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा उनके साथ खेल के। हेलो, धन्यवाद। हेलो,
आइकॉन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो आप, उनका एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो कुछ इनपुट्स उनके माध्यम से भी मिलते हैं टीम को, बाकी सब प्लेयर्स को, बाकी जो खिलाड़ी जो गोवा डिस्ट्रिक्ट से गोवा राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ खेलने के बाद आइकॉन खिलाड़ी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर होता है उनके साथ? ज़रूर होता है क्योंकि कौन से सिचुएशन में कैसे खेलने का ये मौका मिलता है उनको, और कैसे सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करने का है, कौन सा गेम किधर से लेके जाना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अनिकेत, और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, समरसेट स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, एक अच्छा बेसिक देखने को मिल रहा है, एक अच्छा एक ग्राउंड देखने को मिल रहा है, और अच्छे ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, लीग टूर्नामेंट हो रहा है, कैसा लगा ये आयोजन? बहुत अच्छा। गोवा में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है टेनिस बॉल का, लेकिन बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपने जो टॉस जीता है उसके बारे में बताइए कि आपने क्या निर्णय लिया है? फील्डिंग। थैंक यू सो मच। गोपाल गवस मेरे साथ है। गोपाल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, पिछले मैच में आपने 7 विकेट हॉल कंप्लीट किया, इनिंग में एक बड़ा अचीवमेंट किया है आपने। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि टॉस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस ॲक्च्युली एकदम इम्पॉर्टंट होतं, आम्ही बॅटिंगच केली असती आणि आता आम्हाला बॅटिंगच भेटलेली आहे. तर बॅटिंगच्या माध्यमातून ज्यामध्ये आपण बघतोय की करण मोरेने जबरदस्त बॅटिंग केली आहे, तुमच्या संघामध्ये चांगला परफॉर्म केला आहे आपल्या संघाच्या माध्यमातून आघाडीला असताना, आणि असे खेळाडू, कारण आपण बघतोय की राकेश प्रभू असू दे, नंतर आपण करण मोरे बघतोय चांगला परफॉर्म करतात खेळाडू, अशा खेळाडूंबद्दल काय म्हणशील? नाही, एकदम चांगला एक्सपिरियन्स आहे त्यांच्याबरोबर खेळणं, म्हणजे कारण ते एकदम प्रोफेशनल प्लेयर्स आहे, प्रोफेशनल म्हणजे जे आम्ही म्हणतोय व्यावसायिक खेळाडू, सो त्यांच्याबरोबर खेळून आम्हाला पण चांगला एक्सपिरियन्स होतो. आम्ही तेवढं खेळू शकत नाही, पण एनिवेज त्यांच्याकडून भरपूर शिकायला भेटतं आपण. थँक्यू सो मच. सामना सुरू आहे गोपाल, त्यामुळे आपण इंटरव्ह्यू कव्हर करतोय. थँक्यू सो मच आणि ऑल द बेस्ट फॉर द मॅच. टॉस झाले कंप्लीट, नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तो मिझामी पॅराडाईज या संघाने, आणि फलंदाजीला इन्व्हाइट केलंय ते गोपाल गवसच्या KKG नाईट रायडर्स या संघाला. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. Hi, I'm Rajendra Ulkar. I'm right-hand batsman and right-arm bowler. My favorite tennis player is Pandya Bhagat. 3 ओवर की समाप्ति। 16 रन आए हैं, माफी चाहूंगा, इंटरव्यू चल रही थी तो दर्शकों से। 36 रन। इसी बीच हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयोग करने की कोशिश पूरी तरह से बीट हुई है। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी, कम ही मौका दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि बड़ा शॉट लगाए, मगर पिछली ओवर में बिल्कुल शानदार रन आए, यानी कि 16 रन। अब घेर बदलकर निश्चित तौर पर बल्लेबाजी होती हुई स्टार राइजर्स की, और बिल्कुल राइज होते हुए यानी कि उभरते हुए इस इनिंग में कप्तान की मौजूदगी में। फुल टॉस गेंद, रिवर्स का प्रयोग इस बार पूरी तरह से चूके राजू दाभोलकर, जिन्होंने भी गोवा पुलिस के लिए काफी लंबा क्रिकेट खेला है, खास तौर पर T20 में बिल्कुल जबरदस्त पकड़ थी उनकी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे राजेंद्र दाभोलकर, अब स्कूल टीचर, मगर वो दमखम अभी भी, वो जोश और जज्बा अभी भी दिखाई देता हुआ उनकी गेंदबाजी में, उनकी बल्लेबाजी में और उनकी मौजूदगी में। फिर से एक बार बिल्कुल ब्लॉक होल में पूरी तरह से बीट हो रहे हैं बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे जिस प्रकार से अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ को ध्यान में रखकर गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं, बिल्कुल अपने बेसिस को याद रखकर इस प्रकार से सुंदर गेंदबाजी होती हुई, और हर एक डॉट गेंद निश्चित तौर पर एक दबाव बनाता हुआ बल्लेबाजों पर, और तभी तो कप्तान जाकर उन्हें कुछ कान मंत्र कहते हुए कि किस तरह से केवल 1 रन बनाकर स्ट्राइक भी दे दे सईद बदी को तो भी कमाल की बल्लेबाजी रहेगी। तो फिलहाल ये देखिए, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है इस गेंदबाजी का, बेबस हताश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर हैं। केदार जांबावलीकर,
जिन्हें लक़ब मिला है केदार जाधव जो कि गोवा के, मगर राजू दाभोलकर बिल्कुल अपने बेसिक्स पे टिके हुए हैं। हल्का से अपने कदमों पर चुकते हुए फिर से एक बार तैयार। ये देखिए बिल्कुल हमारे लोकल भाषा में जहाँ कहा जाता है कि वारे, यानी कि बिल्कुल हवाई हमला मगर कोई संपर्क नहीं। तो शायद ये ओवर निश्चित तौर पर इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहेगा। ये ओवर निश्चित तौर पर इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस ओवर ने बिल्कुल बैकफुट पर ढकेला है स्टार राइजर्स को। वो लगता है मेडन ओवर, दूसरा मेडन ओवर। ये देखिए विकेट कीपर ने तो बिल्कुल ईद के जैसे गले मिल गए इतनी खुशी से। तो बिल्कुल तारीफ बनती है राजू दाभोलकर की। तो 4 ओवरों की समाप्ति इसी बीच, और 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर वहीं पे रुका हुआ, जो कि 36, 2 विकेट के नुकसान पर। तो तभी तो कहते हैं कि तजुर्बा अक्सर होना चाहिए, और खास तौर पर आपका अनुभव और तजुर्बा जो रहता है बिल्कुल बेहद काम आता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेहरान रॉयल्स फिर से एक बार एक बढ़िया कमबैक करती हुई इस मैच में। तो मेरे पास समय है स्वागत करने का, जो कि कोऑर्डिनेटर आनंद बद्री का भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस मैच में, जो कि बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक काफ़ी कड़ी मेहनत करते हुए, पूरा सहयोग, पूरा साथ देते हुए इकबाल टोनसे साहब का, जो कि अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं समरसेट स्पोर्ट्स क्लब के। तो फिलहाल 5वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फिर से एक बार एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सैयद बदी जो कि स्ट्राइक पर। विजय पावले पहुंच चुके हैं गोवा। पावले यानी कि पहुंच चुके हैं, मराठी में कहते हैं पावले। तो जब कभी गोवा के सरजमीन पर विजय पावले पैर रखते हैं तो सुंदर गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये देखने को मिलता है। जबकि साउथ गोवा प्रीमियर लीग में भी कमाल की गेंदबाजी की थी विजय पावले ने, दर्शकों का मन जीत लिया था। बिल्कुल इस बार हाफ वॉली पर डीप स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है। 1 रन के लिए केवल मिलेगा। ग्यारह गेंदें 45 रन। बिल्कुल अब हर एक गेंद पर चौकी की आवश्यकता, हर एक गेंद पर चौका लगता है तो भी 44 रन बनेंगे, जबकि 45 रन की आवश्यकता। अब मुश्किल स्थिति, उसका कारण वो मेडन ओवर जो कि राजू दाभोलकर की ओर से फेंका गया था। सुंदर ओवर, 1 रन का भी इजाफा नहीं। पटकी हुई गेंद इस बार पुल करने की कोशिश, फिर से एक बार पूरी तरह से चूके केदार। केकेजी नाइट राइडर की टीम ओनर अहमद खान से गुजारिश है कि तुरंत प्रेजेंटेशन अरीना के पास आ जाएं, या उनके भाई अगर हैं तो आ जाएं तुरंत। केकेजी नाइट राइडर्स अहमद खान और अली भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आ जाइए प्रेजेंटेशन अरीना के पास, आपका इंतजार किया जा रहा है। मिश्रण बिल्कुल इस बार गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। क्या गेंद जाएगी मैदान के बाहर? पूरी कोशिश की, खिलाड़ी गए मैदान के बाहर और गेंद को फेंका मैदान के अंदर। इस प्रकार की सुंदर फील्डिंग होती हुई बिल्कुल थर्ड अंपायर की ओर नहीं जा रहे हैं, संतुष्ट हैं अंपायर, यानी कि सुंदर फील्डिंग होती हुई उस फील्डर द्वारा जो कि विश्वजीत ठाकुर। कमाल की छलांग लगाई बिल्कुल चीते की तरह, और गेंद को अंदर फेंका और स्वयं गिर गए बाहर। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, 2 रन की कोशिश रहेगी। सैयद बदी काफी तेज गति से दौड़ते हुए दौड़ पड़े और एक दूसरे को कहते हुए दोनों ही बल्लेबाज भाग मिल्खा भाग। तो मुश्किल स्थिति से उभरना, अगर कोई बल्लेबाज के पास वो दमखम है तो निश्चित तौर पर सैयद बदी वो कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं।
बिल्कुल ब्लॉक होल में सुंदर ड्राइव ऑन साइड की ओर, फिर से एक बार 2 रन मिलेंगे मगर एक ही रन। बिल्कुल अब काफी मुश्किलों में टीम, काफी मुश्किलों में, जो कहते हैं कि अंग्रेजी में द शिप ऑफ स्टार राइजर्स आर इन ट्रबल वाटर्स। तो इस प्रकार की स्थिति, अब हर एक गेंद पर चौका भी लगाएं तो फिर भी मुश्किल है लक्ष्य तक पहुंचना, क्योंकि केवल अब 7 गेंदें बाकी हैं और 41 रनों की मैच जीतने के लिए। शायद एक ही कोई रन नहीं मिलेगा, यानी कि आखिरी ओवर में 41 रन, 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी लगते हैं तो फिर भी 36 रन बनेंगे। तो बाकी के 5 रन कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल यहां पर also nice on screen. Hi, I am Nauso Naik, right arm fast bowler. My favorite player is Mr. Dilkar Dravid. बड़े भाई चंदन नाइक के एक अच्छे गायक भी हैं। अगर किशोर कुमार को गोवा में धुनना है तो 900 नाइक को याद कीजिए। तो फिलहाल वाइड का इशारा, इसी बीच तेज गति से गेंद डालने की कोशिश, वाइड का इशारा। तो मुश्किल स्थिति, फिर भी कोशिश करते रहेंगे, ये जज्बा है सैयद बदी का। ओ बिल्कुल बड़ा शॉट इस बार, 6 रन के लिए मैदान के बाहर, मगर अभी भी नगाड़ा बजता हुआ स्टार राइजर्स का। पांच गेंदें अभी भी शेष। हल्की से दिशाहीन गेंद, 4 रनों के लिए डीप फाइनल की दिशा में। पचास रन पूरे होते हुए इस चौके के साथ 52 रन, 4 गेंदों में अब 30 रनों की आवश्यकता, 30 रन। 4 गेंदें 30 रन। अगर वो ओवर मैडन न जाता तो निश्चित तौर पर अलग ही नजारा होता, क्योंकि क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का मैच, कुछ भी कहना बिल्कुल जल्दबाजी रहेगी। मगर अब बिल्कुल मुश्किल स्थिति, 4 गेंदें 30 रन। चार में 6 लगते हैं तो 24 बनेंगे, बल्कि 5 सिक्सर्स की आवश्यकता। बोल्ड करते इस बार, बिल्कुल ब्लॉक होल में, सुंदर गेंद के साथ। कोई मौका नहीं सैयद बदी को कि खेल पाते। यू मिस आई हिट कहा गेंदबाज ने। इस प्रकार से कप्तान सैयद बदी आउट होकर वापस पवेलियन। अब 3 गेंदें 30 रन, यानी कि हर एक गेंद में अब 10 रनों की आवश्यकता। हर एक मैच के बाद जिस प्रकार से सुंदर परंपरा है समरसेट स्पोर्ट्स क्लब की, मैन ऑफ द मैच यानी कि बड़ी ट्रॉफी, भरत अर्कस ने जब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता तो निश्चित तौर पर काफी खुश हुए। कहा
कि इतनी बड़ी ट्रॉफी मुझे मैन ऑफ द मैच में कभी नहीं मिली और इस टूर्नामेंट की तारीफ भी करने लगे, तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़े ट्रॉफीज तो मिरान रॉयल्स के ओनर यानी कि मुजाहिद शेख की तरफ से कुछ नकदी इनाम आते हुए चंदन नाइक, चंदन यानी कि दे धनाधन। रिवर्स का प्रयोग, 2 गेंदे 30 रन। तो लगभग मैच का समापन, केवल 2 गेंदे शेष। फुल टस गेंद पर ड्राइव, अब केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। आखिरी गेंद 29 रन। तो यहाँ पर 1500 रुपीस यानी कि 1500 का नकद इनाम मुजाहिद शेख की ओर से दिया गया है चंदन दे धनाधन को। अगर मैन ऑफ द मैच वो लेते हैं तो उनके साथ नकद इनाम भी दिया जाएगा। तो वेल डन चंदन, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज सवेरे से चंदन, जिन्होंने 15 गेंदों में 46 रन की शानदार पारी के लिए नाबाद रहे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अभिषेक शानू साहब से, जो कि शुरुआत करेंगे अगली मैच से और प्रेजेंटेशन भी करेंगे शायद। तो मैच के समापन कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा मिरान रॉयल्स को और टफ लक कहना चाहूंगा स्टार राइजर्स को। और प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं हरीश काकोडकर के पास। जबरदस्त अशी मॅच जाली आणि एक टायमार दिसतालें की मिरान रॉयल्स वॉज इन अ डीप ट्रबल, पूण एक अशी खेळी केली एक मनशान। हांव तुमकां सांगता, ऑक्शनाक जेन्ना मुजाहिद शेख आशिल्लो तेन्ना ताणें ऑलरेडी एक मनशा खातीर पयशे दवरिल्ले, तो म्हणटा तो बाब चंदन नायक, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ गोवा। आनी चंदन, तुजी जबरदस्त खेळी जी केल्ली आसा, 46 रनाची 15 बॉलांत थंय मॅच चेंज जाली आनी तुका ज्युरीन एवॉर्ड केला मॅन ऑफ द मॅच।